अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ उसका टाइटल है वाई पीपल फील अनहैप्पी बाय मुफ्ती मेन। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं और पता करते हैं कि आजकल लोग जो है मतलब ज़्यादातर नाखुश क्यों रहते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो। Assalamu alaikum wa rahmatullah. My brothers and sisters, I have a message that I would like to share with you today. It's connected to something that is very, very important. Many people are unhappy, not because Allah has not blessed them with something, but because they started comparing what Allah gave them to what Allah has given someone else. And therefore, they become unhappy. They become unhappy because they are looking at the lives of others and thinking to themselves, that's what I need. And for that reason, they forget what Allah has given them. And yet Allah has tailor-made the gifts that He chose to bestow you with for you. And He made it for them whatever else He wanted to give them. Sometimes you're in a situation, whether it's marriage, whether it's business, the financial levels we're on, your health and everything else, we sometimes do not appreciate what we have, not because we don't have, but because we want to look at others. And this is why to compare your marriage with someone else's, your relationships with someone else's, the biggest downfall, it's one of the biggest ways of people losing their marriages or losing their spouses, should I say. The same applies to being ungrateful when it comes to your business, when it comes to your job, when it comes to your health, when it comes to your situation. Some people are very happy when they witness their friends go out on holiday. They start putting pressure on their spouse or whoever else. We need to go out on a holiday. Not everyone needs to go overseas on a holiday. Sometimes in the country you live in, there may be places right near your house that you've never discovered that would make a better holiday than some of those who've traveled to Hawaii, So remember, do not compare. If you want to break your life, then you start comparing and you start thinking to yourself, you know what, I don't have, when Allah has really given you. Now, what has triggered this? Actually, what triggered it is I dealt with a few cases today of people who have sound marriages, something good, and they start thinking to themselves, you know what, I'm really not happy in this, because they watch what's happening to their neighbor or someone else. And then they don't realize the wife or the husband is actually trying so hard to make things work, and you're just not happy. And nothing makes you happy. The reason why nothing makes you happy is not because people are not trying to make you happy, but because your eyes are fixed on something else completely. Not realizing that a lot of what we see and witness is cosmetic. When people show you what they have online, they're showing you a photoshopped version, a beauty face version of what is the reality. So you're busy thinking that these people have more than what I have, and I'm never going to get there, or I'm not happy because my situation is never going to be there. And that is our downfall. Sometimes you have a relationship, like say, when you get married, you realize that the way you've been brought up might be different from the way your spouse was brought up. Their relationship with their family may be different. Some people have a very cozy relationship, very beautiful. So they get along very well with their brothers and sisters and parents and so on. Whereas a spouse may not be as close to his or her parents as you are, and vice versa. For you to think that, you know what, this particular family is perhaps, or my spouse is doing too much for their parents or her parents or his parents, just because you didn't have that type of a relationship in your home, is unfair. It's unfair. So start thinking to yourself, you know what, I need to live my life and appreciate what the Almighty has bestowed upon me. I need to make whatever I have work for me, and I need to make the most of what Allah has bestowed upon me, because life is too short. We will continue complaining until the day we die if we're not careful. Now, anyway, that was a quick message that I thought I'd share with you. I'm sitting here in this beautiful place, Bradford. They told me it was freezing, there was a lot of snow, and when I came here now today, mashallah, it's quite warm. You notice no jackets, mashallah. And at the same time, there is no snow in sight at all. And I was actually looking forward to it.
I came all the way, but alhamdulillah, I came to meet a friend of mine. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all ease. Lovely chatting with you today. I'm not going to get a chance to go through your comments, but I pray that Allah grant me the ability to improve myself. And I also pray that Allah grant us all the ability to improve ourselves so that we become the best of people. Inshallah, you'll find this posted on YouTube later on. And until we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी। और मुफ्ती मिल्क जो है मतलब वन ऑफ माय फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिनकी मैंने पहले भी बहुत सारी बयान मतलब उनकी सुन चुकी हूँ और सुनती भी हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग की है कि लोग आजकल खुश क्यों नहीं रहते हैं। इसका सबसे टॉप मोस्ट रीज़न है कि लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। तो यही है मतलब हमारा जो मतलब जो हम खुश नहीं रहते हैं, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, रीज़न है, तो ये है कंपैरिजन। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना मतलब देखो उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मतलब वो देखो घूमने गया है, मैं नहीं घूम सकती, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है ना। मतलब हम छोटे छोटे लाइफ के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, या फिर मतलब ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे बहुत सी जगहों में मतलब हम एक दूसरे को मतलब कंपेयर करने लगते हैं। हम अपने पड़ोसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, या अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर रिलेटिव से कंपेयर करने लगते हैं कि देखिए मतलब उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मतलब उसकी जो वाइफ है इतनी खूबसूरत है, मेरी नहीं है, उसका जो हस्बैंड है इतना हैंडसम है, मेरा नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। ये तो मतलब ज़रूरी हो गया है आपके लाइफ में कि मतलब कंपैरिजन तो करना ही है भाई, कंपेयर मतलब करना ही है लोगों को। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि मतलब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आपके पास जो मतलब स्किल है, एबिलिटी है, वो दूसरे के पास ना हो, और वैसे ही दूसरे के पास जो स्किल है मतलब और जो मतलब एक्सपीरियंस है या फिर मतलब टैलेंट है वो आपके पास ना हो, है ना। सभी को मतलब खुदा ने अलग अलग मतलब तरीके से बनाया है, अलग अलग मोटिव के लिए बनाया है। ठीक है, अल्टीमेट गोल है वो तो एक ही है कि खुदा की इबादत। ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब जो खुदा है उसने सभी के लिए सभी इंसानों में जो है अलग अलग फीचर से मतलब भरा हुआ है सभी इंसानों को। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पास ये है तो मेरे पास भी यही होना ज़रूरी है। ठीक है, या मतलब इसकी वाइफ ऐसे है तो मेरी वाइफ भी ऐसी होनी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब लोगों में चेंजेस होता ही रहता है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि मतलब और जब इसी वजह से ना मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो है रिलेशन जो है ख़राब होते हैं आजकल। मतलब जो हस्बैंड है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने वाइफ से कि देखो मतलब उसकी वाइफ जो है ऐसे ऐसे है और मेरी वाइफ ऐसे ऐसे है। वैसे ही जो लड़कियां हैं, जो वाइफ है, वो भी मतलब हस्बैंड के फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं समझती है, मतलब घर के हालात को नहीं समझती है, या फिर मतलब वो ये देखती है कि देखो मतलब उसके हस्बैंड के पास ये वो है, मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए कुछ नहीं करता है, या फिर मतलब उसका हस्बैंड उसे ऐसे घुमाने लेकर जाता है, मेरा हस्बैंड तो घुमाने लेकर भी नहीं जाता है। या फिर जैसा कि और उन्होंने बोला कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड से बहुत क्लोज होते हैं, और कुछ जो है उसके उल्टा होते हैं। ठीक है, फिर वो ये कंपेयर करने लग जाते हैं कि मतलब हमारे घर में ऐसे ऐसे होता है तो तुम्हारे घर में ऐसे। मतलब जब ये जो अलग अलग डिफरेंस को हम जब मिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। मतलब हमको मतलब ये जानना होगा कि मतलब इसको नहीं मिलाया जा सकता, या फिर इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो मतलब जो मतलब कुछ लोग मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है या परिस्थिति है वो कुछ अलग होती है दूसरे कंपैरिजन, मतलब कंपेयर करेंगे तो दूसरों से। ठीक है, तो मतलब उनको मतलब ऐसे रहने में मतलब उनको ज़्यादा कंफर्ट लगता है, तो दूसरों को जो है दूसरे तरीके से रहने में कंफर्ट लगता है। ठीक है, तो मतलब जब हम यहाँ कोशिश करते हैं कि मतलब वो मेरा ही मतलब जो मेरा जो इंटरेस्ट है या फिर मेरी जो ज़रूरत है या मैं मतलब उसको अडॉप्ट कर ले, तो मतलब सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मतलब उनका जो नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, थॉट्स अलग होते हैं, और ज़रूरतें अलग होती है। तो मतलब एक इंसान आपके जैसा क्यों बने?
उसे खुदा ने वैसा बनाया ही नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है बहुत, मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ मतलब आपका थॉट और मतलब सामने वाले का थॉट जो है एक मतलब एक जैसा, मतलब उसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं सेम वही मतलब वो सामने वाला पर्सन वही सोचे। जो आप कर रहे हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है ये करने में, तो सामने वाले को भी वही चीज़ करने में अच्छी लग रही हो, ऐसा नहीं है ना। तो बात है बड़ी सीधी सी, एक दूसरे को कंपेयर करना बंद कीजिए और फिर देखिए कि आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है कैसे आती है, ठीक है। और हस्बैंड एंड वाइफ को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि एक दूसरे की कमियां और अच्छाइयों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाइफ है वो मतलब आपके साथ या फिर आपके घर वालों के साथ बदतमीजी कर रही हो, मतलब बदतमीजी से बातें कर रही हो, तो आप चुपचाप खड़े होकर सुनते रहेंगे, हाँ ये इसकी कमियां हैं मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो गलत करती है या वो गलत करता है तो उसको वहाँ पे टोकना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जो कमियां हैं वो तो हर हर मतलब इंसान में होता ही है, ठीक है। और जो इंसान में कमियां ना हो वो तो फिर खुदा ही हो जाएगा, है ना, जो कि हम हो नहीं सकते। तो फिर मतलब कमियां तो होती ही है, अच्छी चीज़ भी, अच्छे गुण भी होते हैं, कमियां भी होती है, तो उन दोनों के साथ एक मतलब हमें मतलब लोगों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो फिर देखिए कि आपके लाइफ में खुशियां कैसे वापस आती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके मतलब किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन खुदा हाफिज।